यही है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my colleagues. A special thanks to Mia Tariq Saab. And the most important and good thing of this conference is, alhamdulillah, there are 5-6 doctors who are tracking me down, who are following me down. सर आपने आना है। यानी आज रास्ते में भी था तो मुझे फ़ोन आ रहा था, मैडम मैं रास्ते में हूँ। उठा मैंने, मैडम मैं तैयार हो रहा हूँ, पहुँच गया मैडम, मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। मैं इसलिए मिसाल, कल मुझे प्रोफेसर मेरे, तो मेरी लास्ट मंथ लेक्चर था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, जी आपने अगले महीने की इस डेट को आना है। तो खैर मैं लिख लिया, मैं भूल गया उसके बाद। तो मुझे उन्होंने कोई रिमाइंडर नहीं दिया, कोई प्रोग्राम नहीं आया और मैं नहीं गया, भूल गया। तो कल मुझे मिले कि डॉक्टर साहब आप आए नहीं थे। मैं क्या, मुझे सिर्फ आपने 2 महीने पहले बताया था कि इस दिन का लेक्चर है, बट नो बडी फॉलोड मी। तो द गुड एस्पेक्ट एंड द गुड थिंग अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस इज कि माशाल्लाह बहुत से लोगों ने बड़ा रेगुलरली फॉलो किया, तो बंदा एब्सेंट हो ही नहीं सकता चाहे नहीं पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। आई विल डिस्कस 2 टॉपिक्स टुडे। One is IUGR, and the second is ectopic pregnancy new, which I'll discuss with you. IUGR is the most important topic and complication in every pregnant lady. चूँकि हमारी सोसाइटी में pregnancy rate is very high, so once the ladies get pregnant, it's very important to diagnose कि this is normal baby or this is IUGR baby or this is SGA. How to diagnose it? Can I request at the back to the management to little control that? और लाइटें कम कर सकते हैं ज़रा प्लीज़ हॉल से। मलिक साहब लाइटें कम करा सकते हैं, थोड़ी सी लाइटें कम हो सकती हैं, क्योंकि रेडियोलॉजी इज इन द डार्क रूम। ये फ्रंट हॉल की कम करा दें ज़रा, क्योंकि और इमेजेस। Early diagnosis is very, very important to diagnose if this baby is going to have IUGR or not IUGR. IUGR, those fetuses who are smaller than weight, but they do have the pathology. And that difference should be 10th percentile, that I'll share with you. When you say IUGR, there are 2 types of IUGR. One is symmetrical and other is asymmetrical. Majority of our ladies, they've got the asymmetrical IUGR. Asymmetrical means the difference between the bipolar diameter and the abdominal circumference. No IUGR diagnosed without the abdominal circumference. That is take home message. अगर आपने BPD छोटा मेजर कर ली है तो वो IUGR नहीं है। फीमेल ने छोटी मेजर कर ली है तो IUGR नहीं है, unless until you measure the abdominal circumference, because the entire IUGR asymmetrical is dependent on the fetal abdominal circumference. So please उसको मेन ज़हन में रखें कि उसको नहीं भूलना। In symmetrical IUGR, all the parameters get smaller, and that is diagnosed even in 18 weeks. Asymmetrical IUGR is diagnosed after 24 weeks, unless until the lady is pre-pregnant hypertensive. क्या हर बच्चा जो IUGR है वो IUGR है? नो। 4% बेबीज जिनको आप डायग्नोज कर रहे हैं IUGR, प्लीज दे आर नॉट IUGRs, they are normal, but they are SGA, small for gestation age. Small for gestation age. प्लीज़ आप लोग खामोशी इख्तियार करें, डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रहे हैं, तो हमें बिल्कुल साइलेंस चाहिए। पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आप प्लीज़ साइलेंस। खासतौर पे जो वेंडर्स हैं मशीनों वाले, उनके ज़्यादा नॉइज़ है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कहीं थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए प्लीज़, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी सेकेंड थर्ड लेडी हु इज़ कमिंग विद दिस डायग्नोसिस कि बच्चा छोटा है, बच्चा IUGR है। So small for gestation is the baby who is small, but this is not abnormal. This is not IUGR. मैंने शुरू में कहा IUGR baby small with pathology. This is small without pathology. इन दोनों के दरमियान हमें डिफ्रेंशिएट करना है। 100 में से 10 बच्चे IUGR डायग्नोज होंगे, 10 में से 5 बच्चे IUGR नहीं होंगे। So that is the beauty of the message कि आपने किसको IUGR कहना है, किसको स्मॉल कहना है, कौन से पैथोलॉजी में है, कौन से विदाउट पैथोलॉजी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। Many SGA fetuses do not suffer from IUGR, and many IUGR fetuses are not SGA.
Very simple but very complex slide. That means many SDF fetuses do not suffer from IUGR. हमारे सोसाइटी में है कि इन पाकिस्तान any baby who is born less than 2.2 kg or 2.3 kg that is taken as IUGR. Please, my take home message is 2.5 kg or 2.2 kg. If a girl who is a thin, who is small structure and in the habit of producing the kids of 2.5 kg, will you label it as IUGR? No, because she is in the habit of delivering small babies. On the contrary, a healthy lady who is in the habit of delivering 3.5 kg or 4 kg, if she delivers 2.6 kg, that is IUGR. So any baby who is small is not IUGR, and any baby who is IUGR may not be small baby. So that may be pathological. The lady who is delivering 4 kg baby, the delivering 3.5 kg, उसके लिए 2.5 kg का बच्चा IUGR होगा. तो जो खतून 2.5 kg का बच्चा पैदा कर रही है, उसके लिए 2.5 kg का बच्चा IUGR नहीं है. That is small. 3 things you should measure when you are suspecting any case of IUGR: fetal fetometry or fetal biometry, biophysical, and Doppler. As I told you, the most important parameter of all the parameters is always the ratio. Ratio of the bipolar diameter or ratio of the fetal head circumference and FSC ratio. इसके बगैर आपकी IUGR की definition मुकम्मल नहीं होती. Why I'm adding FSC? Because sometimes when the baby is big, 35 weeks, 36 weeks, तो head pelvis से छुप जाएगा, pelvis chest छुप जाएगा. Once the head is small, तो उसका BPD होना चाहिए 36 weeks का या 38 weeks का, हो सकता है 34 weeks का हो. तो will you label it as IUGR because 4 weeks smaller? No. Go for the fetal head circumference. अगर ऐसे ओवल शेप बन गया है जिसको बाद का डोलिकोफेली कहते हैं, that is normal but that is positional, that is not pathological. So please don't simple trust yourself on femur length, on BPD to label a case of IUGR or not IUGR. Always measure the associated FSC. Unless until FSC is small, it's not a case of IUGR. Now how to diagnose? जिनके पास 2D अल्ट्रासाउंड मशीन है, जिनके पास ब्लैक एंड वाइट है, ये उनके लिए भी उतने इफेक्टिव है जिसके पास 4D अल्ट्रासाउंड है. आई जस्ट टेल यू द टिप्स कि आपने कैसे डायग्नोज करना. देयर आर 4 प्रिंसिपल्स टू डायग्नोज अ केस ऑफ IUGR. The first principle is accuracy of ultrasound estimated fetal age is inversely proportional fetal age. Very important. This is a slide. अभी 16 से लेक्चर लिया. इट वाज अ ब्यूटीफुल लेक्चर. आपने टाइम शॉर्ट खत्म करा दी. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. Accuracy is more important in the early age. जैसे उन्होंने कहा था फर्स्ट टेस्ट में लिस्ट ऑफ उन्होंने 6-7 इंडिकेशन बताई थी. द वन विद टुडेज रेफरेंस इज डेटिंग स्कैन. इसको कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर को डेटिंग स्कैन. दैट मीन्स जेस्टेशनल एज. जो आपकी आज एज डिटरमिन हो रही है, दैट इज एज. मैं इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ आपको. एंड द ग्रोथ ग्रोज लाइक दिस, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. बाद में जाके इतनी वेरिएशन आ जाती है. दिस इज नॉर्मल ग्रोथ, दिस abnormal. Even you can have a difference of 4 weeks, 5 weeks growth parameter difference at the age of 39 weeks. तो आप भूल जाएंगे 39 weeks है या 42 weeks है या 36 weeks है. So you get gross variations, but in the early days, by 6 to 12 weeks, the difference between the normal and the abnormal is a week difference. उसकी मिसाल ये स्लाइड देखें. Look at this lady. According to LMP, she says she is 10 weeks pregnant. According to my ultrasound, she is 7 weeks pregnant. What do you label it? IUGR? औरत कह रही है मेरे LMP के मुताबिक आज 10 हफ्ते बने हैं. अल्ट्रासाउंड की आपने. इवन हाउस ऑफिसर कैन डू इट. जिनके पास ब्लैक एंड व्हाइट है, दे आर मोर देन इनफ. आपने अल्ट्रासाउंड एज की कि दिस 7 weeks. तो व्हाट इज द मैसेज? इज IUGR? नो. दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. शी हैज कंसीव्ड लेट बाय 3 weeks. तो इसका जो LMP बनता है वो डिटरमिन करना है डेट ऑफ कन्फाइनमेंट नॉट विद रेफर टू हर LMP. उसके मुताबिक अगर LMP बनती है 7, आज बनती है 13th of नवंबर, तो मेरे मुताबिक ये 3 weeks इसमें शामिल कीजिए. तो दैट मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में डिलीवरी होगी. तो प्लीज दिस इज नॉट ए केस ऑफ IUGR. दिस इज ए केस ऑफ आइदर मिस्टेकन डेट्स और लेट कंसेप्शन, which is very much common in all of you young girls. Once you get married and go to the new home, your periods get disturbed and they get disturbed in your medical examinations.
जब एग्जाम आता है, स्ट्रेस आता है, पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं. सिमिलरली इन द प्राइमरी ग्रेविडा some of the girls they get disturbed their cycles, and according to LMP they do not conceive as per dates. So this is not a case of IUGR. I used to get the patient 12 हफ्ते पे, इसका IUGR तो नहीं है. This is never IUGR for 12 weeks. This is late conception or mistaken dates. Second principle. So the one principle, the most important, कि मुझे आप ये रिपोर्ट दे देंगे खातून की, तो मेरे पास आप 38 वीक्स पे आए, तो मैं इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपको बताऊंगा ये IUGR है या एजी है, क्या बात है. सो प्लीज़ एक टेक मैसेज कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड अपनी ज़रूर करें, पेशेंट का 100% करें, और उसका इमेज भी लें, खाली डॉक्यूमेंट ना करें. आप मुझे इमेज दे दें तो मैं यहीं से बता दूंगा इसकी कंसेप्शन कब हुई है, इसकी डिलीवरी कब होनी है, और इस वक्त मेरे पास जब आई है तो ये 38 वीक्स है, ये 36 वीक्स है, 34 वीक्स है. बिकॉज दिस इज़ अ डेटिंग स्कैन. इसने डिसाइड कर लिया कि इसने 13 नवंबर को पैदा होना है, तो फिर ये 13 नवंबर को ±1 वीक है. आज अगर 38 वीक्स पे आ रही है तो बेशक उसकी टांग लंबी है, बेशक उसका हेड बड़ा है, बेशक उसका एब्डोमेन बड़ा है, तो सारे पैरामीटर हम इसके मुताबिक मैच करेंगे, वो पैरामीटर लेंगे जो इसके साथ सूट करेंगे. नेक्स्ट, सेकेंड प्रिंसिपल इज ऑप्टिमल मेथड ऑफ अल्ट्रासाउंड डिटरमिनेशन फीटल एज वेरीज विद जस्ट एज. हर दफा सैक नहीं मेजर करनी, हर दफा फीटल पोल नहीं मेजर करना, दैट इज विद एज. स्टार्ट विद 5 वीक्स पे यू सी द जेस्टेशन सैक विदाउट फीटल पोल. CRL 6 वीक्स पे स्टार्ट करते हैं 12 वीक्स. 12 वीक्स के बाद देन यू गेट द BPD एंड देन यू गेट द फीमल लेंथ एंड देन यू गेट द फीटल हेड सर्कमफरेंस. सो द सेम पैरामीटर इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम द 14 वीक्स ऑनवर्ड्स. You go to the different parameters. Now, another message is, as I told you, our most important method is fetal abdominal circumference. This lady, according to the LMP, she is 34 weeks and the abdominal circumference is also 34 weeks. So the most important of all the parameters is 34 weeks. Sorry, ये कहाँ चला गया? As I told you, by the age of 24 weeks, चाहे आप स्मॉल स्ट्रक्चर की खातून हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप झारा पहलवान की फैमिली से हैं, all the babies they grow normal parameters. आपकी सेहत का, आपके स्टेटस का, आपकी खुराक का, आपकी हाइट का has no effect on the baby's growth up to the age of 24 weeks. That means all the babies will not get any message from the parents' height, from the parents' health, from the parents' economic status up to the age of 24 weeks in normal babies, except symmetric IGF, which I'll discuss later. So if you look at this age, the abdominal circumference, the female length, the BPD, they're all matching with the 22 weeks of age. If anything goes small here, that is a point of concern. At this stage of life, the maximum difference between the different parameters should not be more than 7 to 10 days. अगर इससे बड़ा डिफरेंस आ रहा है तो आप स्टार्ट थिंकिंग, अगर फीमेल लेंथ 18 हफ्ते पे उसकी 10 दिन छोटी है तो थिंक ऑफ सम अदर अनोमली. अगर उसकी एफएस छोटी आ रही है तो थिंक ऑफ सिमेट्रिक IUGR. सो बाय 24 वीक्स कुछ ख्वातीन जॉइनिंग कर रही हैं मुंह खोल के, ऐसे कर लें. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. लुक एट द ट्विंस. ये इस वक्त शी इज जस्ट ऑन 21 वीक्स. लुक एट दिस बेबी, इट्स हेल्दी FSC, इट्स अ स्मॉल FSC. सो आज पता चल गया कि एक बेबी इनमें से IUGR हो गया शुरू. When you are having twin pregnancy and monochorionic diamniotic, this is the most crucial pregnancy. सबसे बेहतरीन प्रेगनेंसी ट्विन की है डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक. उसके बाद जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है दैट इज मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक. मैडम तो मैं शुरू हुआ हूँ, वो लव लेटर लेके आ गई हैं. थोड़ा टाइम दे दें, बड़ी मेहरबानी, दोबारा ना दिखाइए मुझे. Thank you very much. Look at this fetal circumference. This is 18 weeks and this is 22 weeks. जैसे मैंने कहा था, they should not be disturbed. But this is disturbed, that means there's a monochorionic diamniotic and this is the first early signs of IUGR and asymmetrical growth of the two fetuses. ये ठीक जा रहा है अपनी डेट के मुताबिक, ये दूसरा जा रहा है. So this जब बच्चे इसको फॉलो करेंगे तो this baby is going to have even stuck twin syndrome. इसका लाइकर कम हो जाएगा, इसकी मूवमेंट्स कम हो जाएगी. इट मे बी वाइबल, इट मे नॉट बी वाइबल, एज आई शो यू इन दिस इमेज. हमने इसको फॉलो करते गए, ये ट्विन टू ट्विन ट्रांस सिंड्रोम हुआ. लुक एट द स्मॉल बेबी, लुक एट द लार्ज बेबी, हाइड्रोबिक. दिस बेबी वाज 1.2 kg,
This was 2.9 kg. ये सर्वाइव नहीं किया, ये सर्वाइव कर गया. So take a message is healthy होना, abnormal होना is not important. No doubt is a small baby, but this didn't have the hydrops. This baby had the ascites, mild perfusion, overhydration, and that's why it get into the hydropic fetus. Otherwise, baby survived. Third parameter. Accuracy of gestation age estimates when ultrasound increases as more variables are used. Please, very important. Don't depend on one parameter. आपने BPD लिया, don't go for the BPD all the time because the mother may be very healthy, the BPD may be healthy. The mother may be weak, or the BPD may be small, or the BPD may be having some anomalies, maybe having microcephaly, maybe having some other craniosynostosis. So don't depend on one parameter. Or similarly, baby may be having dolichocephalic. So please take multiple parameters with reference to the first ultrasound, which was done at the first trimester. As I see you here, she's a diabetic mother, and this lady has got a diabetic fetus. According to LMP, she is 36 weeks. So which parameter is matching? The female length is matching 36 weeks, the BPD is matching 36 weeks, the FAC is measuring about 41 weeks. तो क्या हम 41 weeks कहेंगे? क्या हम इसको mature कहेंगे? क्या हम इसको deliver करेंगे? No, because she is matching with the first ultrasound is 36 weeks. No doubt this FAC is 6 weeks larger, but she is not still mature. So we'll give her time to mature for another 2 to 3 weeks. No doubt the baby is going to be very healthier side, maybe good size, but the baby is not mature. मोटा होना और छोटी उम्र का होना, पतला होना और उससे छोटा होना, बड़ा होना is more important. Maturity is age. Maturity is not by health of any parameters. So please make sure the most important parameters are the one which is matching the first ultrasound. जो आपने शुरू में डेट डिसाइड की थी कि इसकी डिलीवरी 13 नवंबर को, तो 13 नवंबर के हवाले से जो पैरामीटर आ रहे हैं हम उस पर ट्रस्ट करेंगे, हम इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे. Similarly, another lady, another parameter, fetal age is enhanced by serial ultrasound. एक पे डिपेंड नहीं करता, उसको फॉलोअप करें कि बच्चा उसके मुताबिक ग्रो कर रहा है. चूंकि हमने SGA को भी डिफाइन करना, हमने IUG को भी डिफाइन करना है. बाज़ लड़कियां स्मॉल स्ट्रक्चर की होती हैं, उनके सारे पैरामीटर ठीक जा रहे हैं, बट दे आर नॉट मैचिंग विद द जस्ट एज नॉर्मल के साथ, उनका भी सारा छोटा होता है. नाउ लुक एट दिस लेडी. According to LMP, she is 35 weeks pregnant. इसकी खातून की हाइट थी 5 feet 9 inches and the husband was 6 feet 2 inches. Look at this femur length. This femur length is 37.2 weeks and the other parameters are 35 weeks. So she should be labeled 37 weeks? No. According to LMP, she is now 35 weeks. According to first ultrasound, she is 35 weeks. But according to the height of the mother, at this stage, 35 weeks पे maternal effects, paternal effects, social, अपना health wise, all those things they are going to affect the child. 24 weeks से पहले नहीं करेगा. So इस age is not 37. This is a case of 30. Biophysical file, उसकी सारी चीजें चेक कर लें. Now the most important thing is कि आपने इनको associate करना with the color Doppler as well. That is $1 million slide. अगर आप इसको बेशक नोट कर लें कि 20 weeks पे यूट्राइन आर्टरी की जो फ्लो होगी उसका एच रेशो 4 होगा, 3 होगा. जो प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी इसकी रेशो कम होती जाएगी. सिमिलरली एमसी के अंदर भी रेशो कम होगी, लेकिन अर्ली वीक्स पे इसकी 7 होगी, 6 होगी, 5 और 4 होगी. सो दैट मीन्स इफ यू मूव लाइक दिस द बेबी इज ग्रोइंग नॉर्मल. हम लाइक एक और मैसेज, अगर आपको 24 वीक्स पे या 26 वीक्स पे या 30 वीक्स पे खाली कलर डॉपलर पे 100% प्लीज डिपेंड मत करें. डोंट डिपेंड ऑन कलर डॉपलर. ब्यूटी होता है जी मुझे कलर डॉपलर चाहिए. नो, इफ द पैरामीटर्स आर गोइंग नॉर्मल, द बायोफिजिकल प्रोफाइल इज ओके, लाइकेट ठीक है, मूवमेंट ठीक है, एक्टिव ठीक है, एज वाइज ठीक है, simple, don't depend on color Doppler because sometimes that may be wrongly measured by us. So if you find the good moments, good amount of Leica, good parameters, and you find the absence of diastolic flow, please अपने गाने को से बात करें, उनको इन्फॉर्म करें. ये नहीं कि उसको आपने दाखिल करवा दिया, ये नहीं कि उसकी आपने सर्जरी करा दी, एब्सेंट हो गई है. वेट करें. और measurement भी फ्रॉम द रॉन्ग एरिया. देयर 6 पॉइंट्स which are covered over here, मैंने डिस्कस कि कहाँ से मेजर किया है, क्या बच्चा ब्रीदिंग कर रहा था, क्या बच्चा हिल रहा था, इज इट क्लोज टू द प्लेसेंटा, इज इट क्लोज द फीटस. सो ऑल दीज थिंग्स दे मैटर. सो माई टेक अ मैसेज, आई डोंट डू कलर डॉपलर वंस. इफ आई डाउट आई डू एटलीस्ट 10 times. मल्टीपल टाइम करें एंड टेक द बेस्ट वन. At 30 weeks, 20 weeks, the S ratio 3.4, which is normal. Again, 36 weeks, the ratio has gone 2.4. Again, this is normal.
At 40 weeks, again the ratio is 2.4, 2.5. Less than 3 is normal after 30 weeks. Now the point of concern is that we join the MC as well, agar ye raised hoga to. Over here, you find the umbilical artery and the MCA. At the age of 40 weeks, the umbilical artery ratio is 2.4 and MCA is 4, जो हमारी स्लाइड के मुताबिक मैच करती जा रही है. अब आगे आ जाए. Now, at the age of 37 weeks, the ratio should be less than 2 or less than 3. Here it is 4.7 and MCA is 2.8. Why the MCA has gone down? इसको तो 4 से नीचे नहीं आना चाहिए था. This nature is nice to you, nature is kind to you. इसे कहते हैं brain sparing effect. So the brain gets more supply as compared to the umbilical artery. With the result, the FSA is small, the SD ratio is high, so that means the lady is either hypertensive, treatment ले रही है या नहीं ले रही, but she is showing all the signs. At this stage, अगर ये 35 वीक्स की है तो इसको डिलीवर नहीं करना. ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज प्लीज. 32 वीक्स पे डिलीवर नहीं करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 30 to 36 वीक्स, ताकि आप मेच्योरिटी के नज़दीक आ जाए, ताकि फिर यू कैन टेक ए बोल्ड स्टेप अनलेस अंटिल. अगली स्लाइड आती है. Now look at this, severe placental insufficiency, and she is how many weeks? She is hardly, I think, 35 weeks, but there is still, you can find the SD ratio which is 5.5. अगर लाइकेट ठीक है, मूवमेंट थोड़ी सी हैं, तो इसको फॉलो कीजिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट डेट. हमारा पर्पज है कि इसको 36 वीक से ऊपर ले जाए. Now this is very important slide. If you find this absence of diastolic wave and the age is about 31 weeks, very very important between weight and not to weight. यहाँ पे combine your color Doppler and the biophysical profile. अगर biophysical profile में लाइकेट ठीक है, मूवमेंट्स ठीक हैं, और आप इसको जो भी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, ड्रिप देना चाहते हैं, टीका देना, इसको फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सेंट बट द लाइकर इज गुड. बट इफ यू फाइंड द लाइकर इज स्कैंटी और नन, मूवमेंट्स आर स्लगिश एंड द रिवर्सल ऑफ लो, फिर ये इररिस्पेक्टिव एज, बेशक 30 वीक्स है, 37 वीक्स है, 28 वीक्स है, दिस इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव. दिस नीड्स डिलीवरी ऑफ द बेबी डिपेंडिंग अपॉन द जेस्टेशनल एज. So my take home message is, first ultrasound always should be done by 12 to 14 weeks. Other than the other reasons, dating scan, कि आपकी कितनी देर की प्रेगनेंसी है, और यहाँ पे आपकी जो डेट डिसाइड हो जाएगी, प्लीज़ उसको अपने अपॉइंटमेंट अपनी जेब में डाल के रखना है. जो मेरे पास ख्वातीन आती हैं आपकी तरफ से, वो सब की जेब में रिपोर्टें होती हैं, वो दिखाते नहीं हो. मेरे डॉक्टर साहब ने कहा दिखाना नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने पूछ के आओ. तो प्लीज़ मेरा मैसेज ये है कि मेरी उम्र नहीं है नकल मारने की, मेरी उम्र है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ ये ठीक है ठीक. तो उसकी पहली अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जेब में हो, उसे कहने खुद ही निकाल के दे दे. वो 4 रिपोर्टें होती हैं, मुझे दिखाती नहीं है. तो एंड डॉक्टर साहब ताड़ा की ख्याल है. और इस स्टोरी इतनी खूबसूरत स्टोरी होती है. मैं कहता बीबी रिपोर्ट है, मेरे पास डॉक्टर साहब कोई रिपोर्ट नहीं है. मैं कहता बीबी उठो, घर जाओ, जो रिपोर्टें लेके आओ. फिर कहती मैं खावन चेक करनी है. हाँ जी चेक करो, है रिपोर्ट, हाँ जी पता चला गड्डी रिपोर्ट पई है. फिर गड्डी रिपोर्ट पई है, गड्डी मिल गई है, गड्डी लैके आने, वो जो उत्थे रह गई होती, उसके पर्स में जेब में होती है, दिखाने नहीं चाह रही होती. तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरा काम आसान कर दें कि वो मुझे रिपोर्टें दिखा दे. आई जस्ट सजेस्ट देम what to do and how to manage things. So if you want to manage and the good pregnancy outcome, first ultrasound 14 weeks, इसको जेब में रखें. All the parameters should be used, and this is the most important. FSA should not be ignored at all. बीबी छोटा आ रहा है, 36 या 32 आ रहा है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है. हो सकता है उसके हेड सर्कमफ्रेंस पूरा आ गया हो, 35 वीक्स नंबर आ गया हो. अगर एक हफ्ता दो छोटे हैं तो दैट इज विद इन द 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज एक्सेप्टेबल. एंड सीरियस स्कैन्स, एक अल्ट्रासाउंड पे फर्ज किया, आज मेरे पास आई लड़की आपकी आई है, पेशेंट आई है, वो है ये 26 वीक्स पे. पुराने ज़माने में जो आई जी होता है, जो ख़वातीन मेरी उम्र की बैठी होंगी, तो पुराने में आई जी होता है, जब एब्डोमिनल गर्थ छोटी होती थी हाथ लगाने से, तो खातून की एज बड़ी होती थी. तो मैंने पहला लेक्चर लिया था 91 में, फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड. तो मेरा मैसेज ये है कि वो डेज वर डिफरेंट, नाउ द डेज आर डिफरेंट. अगर आपकी जेब में ये रिपोर्ट आ गई है, तो आप ना भी हाथ लगाएं तो अल्ट्रासाउंड से आपको वेरी गुड हेल्प मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. कोई सवाल पूछना हो तो थैंक यू.